गीता में लाओ गीता ज़्यादा हिंदी में पढ़ता हूँ पर आपने इंग्लिश में ले लिया। हाँ, मेरे को इंग्लिश में फटाफट समझ पड़ता है, हिंदी में मतलब टाइम लगता है। ओके। बाकी लैंग्वेज में तो बहुत ही टाइम लगता है। इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है। हाँ, बिकॉज स्कूलिंग सारी इंग्लिश में हुई है ना। वैसे इंग्लिश बहुत बहुत सस्ती लैंग्वेज है। हाँ, है तो बड़ी सस्ती, बहुत सस्ती है, इसलिए ज़्यादा संस्कृत तो सबसे डिफिकल्ट है। कमाल लैंग्वेज। कमाल लैंग्वेज। मैंने संस्कृत भी पढ़ी है, बट एक होता ना फास्ट डिकोडिंग, दैट हैपेंस इन इंग्लिश। ओके। डिकोडिंग आप समझ रहे हाँ डिकोडिंग। Decoding. Like he's also talking. It's so easy to just decode whatever. आप ये जो 13 और 14 श्लोक हैं, इसका ट्रांसलेशन और परपट यहाँ तक पढ़िए आप, बोलकर पढ़िए, मैं सुनूंगा। 13वां 14वां अध्याय संस्कृत आपको पढ़ने आएगी नहीं? आएगी। पढ़ने संस्कृत भी पढ़िए और इसका ट्रांसलेशन और परपट पढ़िए। बहुत अच्छा। पंचैतानि महाबाहो कराणानि निबोधा में संख्ये सिद्धाये सर्वा कर्माणां सर्वनामाय अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणां का च प्रथाग अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथ्वीदमयी। आप ट्रांसलेशन पढ़िए ऊपर ऊपर टॉप में सबसे ऊपर। O mighty armed Arjuna, learn from me of the 5 factors which bring about accomplishment of all action. Yes. These are declared in सांख्य फिलॉसफी। Sankhya philosophy to be the place of action, the performer, the senses, the endeavor, and ultimately the super soul. Yes. A question may be raised that since any activity performed must have some reaction, Yes. how is it that the person in Krishna consciousness does not suffer or enjoy the reactions of work? Yes. The Lord is citing Vedanta philosophy to show how this is possible. Yes. He says that there are 5 causes for all activities and for success in all activity, and one should know these 5 causes. Sankhya means the stock of knowledge, and Vedanta is the final stock of knowledge, accepted by all leading acharyas. Even Shankara accepted Vedanta Sutra as such. Therefore, such authority should be consulted. The ultimate will is invested in the super soul, as it is stated in the Gita. Sarvasya Chaham. He is engaging everyone in certain activities. Acts done under his direction from within yield no reaction, either in this life or in the life after death. The instruments of action are the senses, and by senses the soul acts in various ways, and for each and every action there is a different endeavor. But all one's activities depends on the will of the super soul, which is seated within the heart as a friend. The Supreme Lord is the super cause. Under these circumstances, he who is acting in Krishna consciousness, under the direction of the super soul, situated within the heart, is naturally not bound by any activity. Those in complete Krishna consciousness are not ultimately responsible for their actions. Everything is dependent on the supreme will, the super soul, the supreme personality of God. थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। Thank you. मतलब आपकी इंग्लिश रीडिंग इतनी अच्छी है तो इससे समझ में आता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत क्लियर है। अब इसको हम आ जाने दें संग्राम जी को, तो फिर मैं बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। What I can figure out is a lot supreme consciousness, the will, the intention. बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में भी हो रही है। मैं आपको ऐसे ही बोलती हूँ, बहुत सारी चीजें हो रही है जो कभी नहीं हुई in the last 1-2 years. And lot of people who are close to me, who are a part of my life, think that I am doing it for certain reasons. I am telling them that I am doing it because it is coming from within. You know, there are a lot of things that I speak, and there are a lot of things that I talk about, Yes, which that is the people category. in my zone don't talk. They say it is not our perspective. Why should we talk? But something happens in me that makes me talk. Makes you better. They think it is maybe I need publicity, maybe I need. It's not that. I don't want to be. Reality is something and understood is something. Yes. Right. So that is happening in your life. So I am telling them because they are telling me that because of my activities, their life is getting affected.
afflicted Yeah. and they are getting trouble, Right. I tell myself, okay, if they want to help, fine, otherwise I leave it to God. So Yes. I am leaving a lot of things to God. Okay, that's good. I am So, get your point. See, भगवान कृष्ण गीता में क्या बताते हैं? इसका जो मतलब है 5 फैक्टर होते हैं किसी भी एक्शन में, चाहे वो बुरा है चाहे अच्छा है, either bad or good. बिना 5 फैक्टर के कोई काम होता नहीं। पता है 5 फैक्टर कौन है? पर्सन, प्लेस, इंस्ट्रूमेंट, एफर्ट और फाइनली जो है सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। बिना भगवान की कृपा से पता नहीं होता। सुना है ना आपने? उनकी जी, मर्जी जी। में पता नहीं होता। पता भी नहीं। राइट। अब ये पांचों में से अगर 4 मान लीजिए 99% है और 1% भगवान है, अगर ये 1% नहीं होगा ना तो 99% काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल सुनो। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, राइट? तो बिजनेस में 5 चीज़ें होती हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी हर चीज़ में 5 होती हैं। आप यहाँ पर आए हैं ना, हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी 5 चीज़ें फैक्टर हैं। आप खाना खाएंगे, सोएंगे, बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, इन एवरी एक्टिविटी दी 5 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द 5 फैक्टर्स। इनको समझने का मतलब क्या है? हम कहाँ समझते हैं कि मैं बड़ा सेब खाऊं, मैं 30 मार खाऊं, मैंने सब कर लिया, मैं बड़ा तुर्रम खा नहीं हूँ। ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान के कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला फैक्टर है ना, उसको बोलते हैं दैव योग। क्या बोलते हैं? दैव योग। सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। बिना उनकी सैंक्शन के कुछ नहीं होता। तो कोई आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता है, इसमें कौन कौन चीज़ें चालू इन्वॉल्व होगी? पर्सन चाहिए, पहला पर्सन होना चाहिए। बिजनेस करने के लिए प्लेस होना चाहिए। उस बिजनेस में कुछ इंस्ट्रूमेंट भी लगेंगे, कंप्यूटर ऑफिस से सब लगेगा। वो क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया। स्किल्स लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी, राइट? तो पर्सन के रूप में आप बेस्ट पर्सन हो सकते हैं। प्लेस के रूप में दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, बेंगलोर, चेन्नई, कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, मुंबई, अहमदाबाद, वो प्लेस हो गया। वो आपके हाथ में है। पर्सन आपके हाथ में, प्लेस आपके हाथ में है, इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है, वो भी आप पैसे से खरीद सकते हैं। बेस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉय कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग ले सकते हैं, बेस्ट ऑफ द कोच अपॉइंट कर सकते हैं, वो सब आपके हाथ में है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ करते जाइए आप सब कुछ। पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। एफर्ट भी आप डालिए। 2 घंटे जगह 4 घंटे मेहनत कीजिए, खूब पसीना बहाइए, खूब नेट प्रैक्टिस कीजिए, खूब अखाड़े में लड़िए, खूब जाकर यूट्यूब पर प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेकअप कीजिए, दुनियादारी जो आपको करना है सब कीजिए। आप बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी आप कीजिए। पर्सन के मामले में, प्लेस के मामले में, इंस्ट्रूमेंट के मामले में और एफर्ट के मामले में खूब एफर्ट डालिए। लेकिन इसमें गीता भगवान का है कि जब तक मेरी सैंक्शन नहीं होगी तब तक ये चारों काम नहीं होंगे। ये भगवान का बात तो सही है। जब वो परमात्मा चाहेगा तभी होगा। तो वही होगा। आपने कभी देखा है ना कि बड़े बड़े स्टार 0 पे आउट होते हैं, और कई बार जिनको उम्मीद नहीं की जाती उन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। बिल्कुल लाया है ना? बिल्कुल। उसके पीछे एक कारण है सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। पंचैतानि भूतानि। हम- अगला श्लोक क्या है मालूम है? पंचैतानि महाबाहो, अगला श्लोक है इसमें। हाँ, पंचेतानि महाबाहो हाँ। कर्णानि निबोध में हाँ। साढ़े क्रांता क्रातानते क्रोतानी प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकरणाम सर्वकरणाम। अधिष्ठान तथा कर्ता करण। मैंने पता अधिष्ठान मतलब प्लेस, करता मतलब पर्सन। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, वो संस्कृत में। जैसे मान लीजिए आपने सर, जैसे मान लीजिए रोटी बनाते हैं, अपने खाने जा रहे हैं ना, बनाने वाला कोई और है, वो पर्सन है, प्लेस है। अगर कुकिंग फायर नहीं होता तो हम क्या रोटी बना लेते बताओ? रोटी बनाने वाला महान है या फिर रोटी को जिसने रॉ मटेरियल दिया वो महान है? जी माँ तो वो है जिसने हम पैदा कर दिया। अगर वही नहीं पैदा करता तो कहाँ से अगर पानी नहीं होता, आटा नहीं होता तो हम क्या खा रोटी बना क्या लेते? रोटी बना रहे? अच्छा चलो एक बात है, अगर अग्नि नहीं होती तो रोटी पकती कैसे? एक बात है, मान लीजिए भगवान अगर हमारे बॉडी में फायर नहीं रखे होते तो पकती कैसे हो? तो कुकिंग से लेकर डाइजेशन तक तो भगवान का हाथ है ना। तो फिर हम क्यों काला टाइट करें कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, आई डिड दिस, इज माय वर्क, माय क्रेडिट, ऑल ग्लोरी टू मी, व्हाई शुड मैं चिल्लाऊं? मैंने भी देखा महाराज अपनी लाइफ में कि मैं करना कुछ चाहता हूँ और फिर परमात्मा अच्छी तरह गाइड करता है, वो अच्छी जगह लेके जाता है। शुरुआत में परेशानी होती है, अगर फिर देखता हूँ ना 1-2 साल बाद तो देखता हूँ कि अगर वो मैं करता तो यहाँ नहीं आ पाता। दिस इज द कॉल्ड फेथ इन कृष्ण। हैव फेथ इन कृष्णा, डिपेंड ऑन कृष्णा, ही विल गाइड यू फ्रॉम द बिगिनिंग। भगवान दो तरह से काम करते हैं मालूम है? 2 तरह से गुरु का रोल करते हैं। एक तो बाहर, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मैं एक शिक्षा गुरु के रूप में बात कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि मैं भगवान की ही बातें कर रहा हूँ। और दूसरा भगवान परमात्मा के रूप में हर सोल को गाइड करते हैं, वो चैत्य गुरु उनको कहा जाता है। तो हर जीव को गाइड करते हैं। लेकिन जब जीव भगवान की बात नहीं सुनता ना तो वो बाहरी गुरु से मिलवा देते हैं, तो दोनों का काम हो जाता है। लेकिन आदमी पतन कहाँ होता है मालूम है? जब ना अंदर सुनता है ना बाहर सुनता है, तब वो फंस जाता है। जैसे दुर्योधन ने ना अंदर की बात सुनी ना बाहर की बात सुनी,
बस अपना ही सुनना है, अपने दिमाग की सुनना है, कुछ भी बन जाता है, राम रहीम कुछ भी बन जाएगा, राइट। तो हमें किसी के कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहावत है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। बिल्कुल। पाप से घृणा करो पापी से। इंसान गलत नहीं होता, उसकी सोच गलत होती है, सोच कई बार चेंज हो जाती है, वही नहीं समझाने की कोशिश करता है। वह कोई भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा राम ने भी कुछ जीवन में अच्छे काम किए हो, बहुत किए, लेकिन एक गलती 99 पे भारी है। बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हैं? 1% दाग जो है ना, 99% सफेदी पे क्या है? धब्बा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने किसी के जीवन में 10 अच्छे काम किए हैं, एक थोड़ा सा बिना अनइंटेंशनली या आप कुछ मिस्टेक हो जाए वो रिवर्स कर देंगे। तो फार्मूला आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब इसको उदाहरण समझते हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है और एरिया ऑफ कंसर्न क्या है। जैसे मान लो एक नागरिक के रूप में, एक हाउसवाइफ के रूप में या एक बिजनेसमैन के रूप में, हमारा जो कंसर्न है वो पूरे देश से, पूरी दुनिया से, देश ही क्यों पूरी दुनिया से है। मानव होने के नाते हमारा जो कंसर्न मतलब संबंध, हमारा जो लगाव है पूरी दुनिया से है, ये हमारा कंसर्न हुआ। लेकिन एरिया जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत लिमिटेड है। मान लीजिए अफगानिस्तान में तालिबान बहुत आतंक मचा रहे हैं, तो क्या अहमदाबाद बैठ करके मैं गालियाँ बकूँ या बंदूक उठा लूँ? यह इंटेलिजेंट डिसीजन है? नहीं। मान लीजिए कि देश के किसी दूसरे हिस्सा में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आप अपने घर में बच्चे संभाल रहे हैं, अपने पति को संभाल रहे हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चा पटक करके, पति को पटक करके उनके जाके जंगल में कूद जाएंगे? इसको इंटेलिजेंट डिसीजन बोलते हैं? नहीं, आप उसको बोलते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। आपका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, आप वहीं तक जाइए। जैसे मान लीजिए आप जहाँ प्रभाव नहीं डाल सकती हैं या नहीं डाल सकता है, वहाँ हमको नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कि रेसलर एसोसिएशन की प्रॉब्लम है, मैं एक साधु संत आदमी हूँ, रेसलर एसोसिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग देखेंगे, लेकिन मैं अपना माला छोड़ करके, गीता छोड़ करके उनके झगड़े में नहीं पढ़ने वाला। एक बात, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि मैं वहाँ इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता। हमको कहाँ इन्फ्लुएंस डालना चाहिए? जहाँ तक हमारा एरिया है। जैसे मान लो कि आज भारत सरकार एक अभियान चलाती है, स्वच्छ भारत अभियान, राइट। स्वच्छ भारत अभियान में हमारी 2 ड्यूटी है। एक तो है हम पूरे भारत देश के नागरिक हैं और हमारा कंसर्न है कि पूरा देश साफ होना चाहिए, राइट। लेकिन हमारा जो रोल है वह हम अपने तरफ से कोई गंदगी नहीं करेंगे, इसको कहते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एक बात है, अगर सरकार ने हमको एम्बेसडर नियुक्त किया है तो हम उसका प्रचार भी करेंगे, लेकिन अगर हम सड़क पर निकलें, लोग जहाँ तहाँ थूक रहे हैं, जहाँ तहाँ गंदे चीज़ें फेंक रहे हैं, मैं सबसे झगड़ना चालू करूँ तो हमारा ही जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। इससे हमको क्या है, बिना मतलब के, जैसे मैंने सर ने कहा ना, बिना मतलब के पंगे नहीं लेना चाहिए। यह इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं है। मान लीजिए कहीं पर दंगा हुआ है, कानून को हाथ में लेना हमारा काम नहीं है, पुलिस का काम हम नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट का काम हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लेवल पर एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति भूखा है, आप उसको खाना तो खिला सकते हैं ना, लेकिन पूरे शहर की भूखमरी आप नहीं मिटा सकते हैं। यद्यपि आप उससे प्रभावित जरूर हैं, लेकिन आप प्रभाव नहीं डाल सकते वहाँ। तो यह एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हुआ। तो एरिया ऑफ कंसर्न और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ये प्रॉपर हमको डिजाइन करना चाहिए कि हम कहाँ पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं और कहाँ पर हमारा कंसर्न है। आज पूरे देश में नशे की बड़ी समस्या है, आज हर युवा नशा से ग्रसित है या नशे की लत में है। तो मैं क्या करूँ? मैं खुद नशा नहीं करूँगा, नंबर 1, राइट। और दूसरा, जो भी हमारे संपर्क में आएगा मैं उसको सलाह दूंगा कि नशा करने से नुकसान क्या होता है। यह है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट। लेकिन अब हम पूरे देश के लोगों को एक अपना काम छोड़ करके सिर्फ नशा की लत छुड़ाने के पीछे पड़ जाएं और अपना खुद का नुकसान करने बैठे। या मैनेजिंग पावर से मालूम है, ऑपरेशन सक्सेस होना चाहिए लेकिन पेशेंट भी बच जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऑपरेशन सक्सेस बट पेशेंट डाइड, इसका मतलब क्या है? सक्सेस तो भी होगा, हमारा जो बचेगा तभी नहीं, तो फिर बचाने का मतलब क्या हुआ? तो 2 चीज़ें आप ध्यान में तो रखें। आप डिसीजन की बात आती है ना, जैसे अर्जुन क्या था, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन डिसीजन लेने में फेल हो रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु मेरा दिमाग काम नहीं करे, मैं लड़ूँ या नहीं लड़ूँ या लड़के भाग जाऊँ इधर से। भगवान उनको समझाया कि इंटेलिजेंट डिसीजन है कि तुम मेरे अथॉरिटी में, मेरे डायरेक्शन में काम करो। तो हमारे लाइफ में एक हायर अथॉरिटी होनी चाहिए, सेल्फ डिसीजन लेना बेहतर है। जैसे आर्मी में भी क्या होता है, जब सोल्जर बंदूक चलाता है उसके पीछे कैप्टन या कमांडर होता है, वो गाइड करता है। खुद से ज़्यादा गोलियाँ दागना या खतरे से बाहर है। जैसे डॉक्टर भी होता है ना, सीनियर डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करता है, तो या तो एक्सपीरियंस वाला आदमी होना चाहिए या पीछे कोई बैकअप होना चाहिए जो हमारे डिसीजन को प्रॉपर डायरेक्शन दे सके। खास तौर से हम जब अपनी फैमिली लाइफ में देखते हैं तो हमारे ऊपर एक कोई अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम हमेशा उनसे कंसल्ट करें कि इस मामले में क्या करना चाहिए, इस मामले में क्या बोलना चाहिए। और जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्टिंग करने लगता है तब एक खतरे की स्थिति मानी जाती है, खतरनाक स्थिति है।
तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, चाहे वो हमारा खुद का माइंड हो। और माइंड 99% चीटिंग करता है। माइंड की बात सुनने वाले को क्या कहते हैं मालूम है हिंदी में? माइंड को हिंदी में मन कहते हैं। मन की बात सुनने वाले को मनमानी बोलते हैं जी। और बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि बताई गई है गीता में। बुद्धि को मानने वाले क्या कहते हैं? बुद्धिमानी। अब आप डिसीजन करो हमको मनमानी करना है बुद्धिमानी करनी है। बुद्धिमानी। हमें अपने मन की सुनना है कि बुद्धि की सुनना है? ज़्यादातर लोग अपने मन की सुनते हैं, बुद्धि की तो सुनते हैं तब जब सब कुछ खत्म हो गया। अपने माइंड को फॉलो करते हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। भगवान गीता कहते हैं बुद्धि योग कहा गया। गीता की शिक्षा को क्या कहा गया? बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब अप्लाई इंटेलिजेंस। अगर हमने इंटेलिजेंस को अप्लाई किया होता ना, इंटेलिजेंस अप्लाई करने का मतलब हर अथॉरिटी को सुनना, बातें सुनना, तब जाकर काम होता है। तो महाराज जी अभी आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम विद्यासागर दास। तो अभी आप फिलहाल ये कौन सा मंदिर है, कौन सी जगह है? ये हरे कृष्ण मंदिर अहमदाबाद है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में इस्कॉन संस्था बनाई है। इस्कॉन संस्था का उद्देश्य ये है कि लोगों को आध्यात्मिक रास्ता दिखाना, ऑल अराउंड कैसे हैप्पीनेस आए। कि भगवत गीता को हमने बताया कि हमारी शिक्षाओं का बेस है। भगवत गीता में कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है जो आपके जीवन में समाधान नहीं ला सकती है। आप समझिए अर्जुन के सामने समस्या क्या है? अपने गुरु से ही लड़ना है, अपने रिश्तेदारों से लड़ना है। जब अर्जुन की समस्या सॉल्व हो सकती है तो हमारी आपकी क्यों नहीं सकती? हमारी आपकी बहुत छोटी समस्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग गीता से सहारा नहीं ले रहे, गीता पढ़ नहीं रहे। तो महाराज जी किसी को आपसे ज्ञान लेना है या कुछ करना है तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? आप हमसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था की जो वेबसाइट हरे कृष्ण मंदिर .org अहमदाबाद है, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह यही है, निवेदन है कि आप हर रोज गीता को अपना लाइफ पार्टनर बनाओ। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की लगाम किसको पकड़ाई? भगवान कृष्ण भगवान। लगाम क्या है? लगाम हमारे शरीर की बुद्धि है। लगाम क्या है? बुद्धि है। हमारी बुद्धि किससे अटैच होनी चाहिए? कृष्ण से। मन और बुद्धि अगर भगवान के हाथ में है तो समझो रथ सही दिशा में जाएगा। लेकिन अगर मन और बुद्धि हमारे हाथ में है तो रथ गड्ढे में गिरेगा। तो महाराज जी थैंक यू सो मच जो आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, और ये ज्ञान मैं सभी के साथ शेयर करूंगा तो सबको बहुत फायदा होगा। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हरे कृष्ण।